سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں۔ جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سیلاب متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی بل معاف۔ متاثرین کے بجلی بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ بارشوں اور سیلاب سے جاری نقصان اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، متاثرین کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک فوج اور متعلقہ ادارے ریلیف ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ متاثرین کے اپنے گھروں میں واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس کل دوحہ میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ عرب اسلامی سربراہان کا ہنگامی اجلاس قطر پر اسرائیلی جارحیت اور فلسطین کی صورتحال کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے۔ OIC رکن ملکوں کے سربراہ اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ J-10C طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا تاریخی دورہ۔ انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات۔ J-10C، JF-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹرز پر بریفنگ۔ ڈرونز، خودکار یونٹس اور ملٹی ڈومین آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ J-10C اور JF-17 طیاروں نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص میں طیاروں کی کارکردگی نمایاں رہی۔ ایویشن انڈسٹری کارپوریشن پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری کی علامت ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے سفر۔ چانگڈو سے میانگ یانگ پہنچے۔ صدر مملکت نے آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ چین میں 45,000 کلومیٹر ٹریک کے ذریعے سالانہ 2 ارب سے زائد افراد سفر کرتے ہیں۔ صدر مملکت کو ٹرین سروس اور حفاظتی نظام پر بریفنگ۔ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی۔ صہیونی جارحیت خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطر پر غیر قانونی اور بلا جواز اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ قطر کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ میں عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس سے قبل وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دوحہ میں ایران، ملائیشیا، ازبکستان، مصر کے وزرائے خارجہ اور بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ سے ملاقاتیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مسلم امہ کو متحد کرنے میں OIC اور عرب لیگ کے کلیدی کردار پر زور۔ Gone! Straight to hand at point. What a start for India. Now will that fielder have a chance? I think there is a chance here. Hardik Pandya scored it. That's going to be 4. Nicely controlled pull shot. T20 ایشیا کپ کا چھٹا میچ پاکستان اور بھارت دبئی میں مد مقابل۔ ٹاس جیت کر پاکستان کا بیٹنگ 18 اوورز میں 8 وکٹوں پر 99 رنز بنا لیے۔ سائم ایوب 0، محمد حارث 3، فخر زمان 17، سلمان علی آغا 3، حسن نواز 5 اور محمد نواز 0 پر آؤٹ۔ صاحبزادہ فرحان کے 40 رنز۔ میچ PTV سپورٹس ایشیا پر براہ راست۔ Down the track, it's up in the air and taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دیکھنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی انتظامات۔ بڑے شہروں میں بڑی سکرینز نصب۔ شائقین میچ دیکھنے میں مصروف۔
दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,25,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सक्खर और कोटरी बैराज पर आइंदा 24 घंटे में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। सक्खर, घोटकी, नौशहरो फिरोज, जामशोरो, खैरपुर और सजावल के मजीद 60 देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां, खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान की फराहमी। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का मुफ्त इलाज। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर और गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। तमाम बैराजों को बचाना तरजीह है। गुड्डू से सक्खर तक हिफाजती बंद मजबूत बनाया है। पहली तरजीह लोगों की जिंदगियां बचाना है। कश्मीर में 30,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों समेत जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। जलालपुर पीरवाला से 21,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी। पंजाब के दूसरे सैलाब मुतासरा इलाकों में भी बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर सेहत काजा सलमान रफीक का मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाके सैदपुर का दौरा। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात। तहसील अलीपुर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया। जिलाई इंतजामिया को हर सैलाब मुतासरा फर्द के नुकसान का तयन करने की हिदायत की है। मुतासरीन को खेमे, इमदादी सामान और खाना पहुंचाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टोबा टेक सिंह में मिल फतियाना पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर हसन इकबाल का नारोवाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन में राशन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तकसीम की। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक उनके साथ हैं। नुकसानात का मुकम्मल इजाला किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल के हल की यकीन दहानी। गवर्नर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। वफाकी और सूबाई हुकूमत, जिला इंतजामिया, पाक फौज और तमाम इदारों ने मुतासरीन की भरपूर मदद की। मुतासरीन की दोबारा बहाली तक इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलुकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कैप्टन तैमूर के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। फितनतुल खवारिज की नाकामियों के बाद अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। बड़े दहशतगर्द सरगना की हलाकतों से खारजी सख्त तज़ब्ज़ुब का शिकार। खारजी नूर वली मुतादिद बार खारजियों को मोबाइल फोन से दूर रहने की सख्त हिदायत दे चुका। खारजी छुपने के लिए मसाजिद और घरों का इस्तेमाल करने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बड़े पैमाने पर मुहासरे की कार्रवाइयां। बारामूला और डोडा में घर घर तलाशी, मकीनों को हिरासा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुहासरे और तलाशी की बिलाजवाज कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। भारतीय फोर्सेस ने इन देहात में कैंप कायम रखे हैं जिनमें हिंदुत्वा अनासिर को तरबियत दी जा रही है। कंट्रोल लाइन से मुल्हिका इलाकों में भारतीय फौज की कार्रवाइयां मोदी हुकूमत के मजमूम मंसूबों का हिस्सा हैं। मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। भारत मजीद जंगी हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। सियासी बहरान में डूबी मोदी सरकार के नित नए हरबे। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही के बाद नए तैयारे भारत की मजबूरी। इंडियन एयरफोर्स ने दिफाई मुआहदे में मजीद 114 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर जोर दिया। दी ट्रिब्यून।
मार्के हक में शिकस्त के बाद भारत जंगी साजो सामान के जाली मॉडल्स बनाने लगा। राफेल तैयारों और S-400 जैसे महंगे दिफाई निजाम के नुकसान ने भारत को दिफाई निजाम के नकली मॉडल्स पर मजबूर कर दिया। मकसद असल जंगी साजो सामान की तबाही की सूरत में जाली मॉडल्स की तबाही का बयानिया बनाना, मुस्तकबिल में शिकस्त और हजीमत को छुपाना और फजाई हमले में धोखा देने की कोशिश है। मोदी का दौरा मणिपुर महज सियासी ठोक, रियासत बदस्तूर तशद्दुद और तकसीम की लपेट में। मणिपुर के 9 बड़े मसाइल भी हल न हो सके। मणिपुर नस्ली बुनियादों पर तकसीम शुदा रियासत। इंटरनेट ब्लैकआउट ने सहाफियों को खामोश और तालीम और खिदमात को मफलूज कर दिया। 2024 में मणिपुर के अवाम बीजेपी को इंतखाबी शिकस्त देकर मोदी का गुरूर खाक में मिला चुकी। भारतीय जरीदा द वायर। गजा पर इस्राएली बमबारी में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। काबिज फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों और पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया। मुसलसल बमबारी से हजारों फलस्तीनी इलाका छोड़ने पर मजबूर। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। बर्लिन में 20,000 से ज्यादा अफराद की गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ रैली। इसराइल को जर्मन असलहे की तरसील बंद करने का मुतालबा। पीटीवी पेशावर मरकज के साबिक सीनियर न्यूज प्रोड्यूसर हसन मोमन इंतकाल कर गए। वो 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा पीटीवी से वाबस्ता रहे। सहाफत के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। हसन मोमन ने खैबर पख्तूनख्वा में फील्ड रिपोर्टिंग की बुनियाद रखी। वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़, MD पीटीवी अमरीन जान, डायरेक्टर न्यूज और शोबा न्यूज से वाबस्ता स्टाफ का हसन मोमन की खिदमात को खराज अकीदत। मरहूम की मगफरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायराकार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इक़दामात। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील। टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। नौजवानों के लिए वजीर-ए-आज़म का स्पेशल इनिशिएटिव, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर। नैफटेक और पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स में इंडस्ट्री के तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी मुफ्त फनी तरबियत का आगाज। लेदर ग्लव्स स्टिचर, लेदर ग्लव्स पैटर्न मेकर और कैड कैम कंप्यूटराइज्ड ग्लव्स पैटर्न मेकिंग में 6 माह के मुफ्त कोर्सेज और यकीनी रोजगार के मौके। ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025। क्लासेस का आगाज 1 अक्टूबर से। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब है। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है
मुल्क के 16 बड़े शहरों में एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड ऐप डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, T20 एशिया कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है। साहिबजादा फरहान 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन बनाए हैं और उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एटी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला दुबई स्टेडियम में इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 127 रन बनाए हैं और भारत को 128 रन का हदफ दिया है। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनर रहे। क्रीज पर उन्होंने बैटिंग का आगाज किया और साहिबजादा फरहान 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि शाहीन आफरीदी 33 रन के साथ उन्होंने 6 छक्के लगाए। शाहीन आफरीदी ने नाज़रीन 4 छक्के लगाए हैं और उन्होंने 33 रन स्कोर किए हैं, जबकि साहिबजादा फरहान 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। Gives him the charge. Does this carry? Yes, it does. A long time awaiting, 33 deliveries since a boundary. Now this has gone straight up. Another opportunity, another wicket here in the offing. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा इलाकों में घरेलू सार्फिन के लिए अगस्त के बिजली बिल माफ करने का ऐलान करते हुए कहा कि कमर्शियल और सनती सार्फिन के नुकसानात का भी तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। ज़रई, कमर्शियल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस इंसानी जानी नुकसान के अलावा सैलाब से मुतासरा आबादी के माल मवेशी, रोज़गार और घरों को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। मुतासरा आबादियों में अशाए खुर्दनोश
اور صحت کی سہولیات کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور فوج سب مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے وفاقی حکومت اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گی۔ یہ اجلاس قطر پر اسرائیلی حملوں اور فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں OIC کے رکن ملکوں کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ پاکستان نے قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی عوام کو درپیش مشکلات کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس سے قبل 11 ستمبر کو دوحہ کا دورہ کر کے قطری قیادت سے اظہار یکجہتی اور پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اپنے دورہ چین کے دوران شنگھائی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر صدر مملکت کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ CPPCC شنگھائی کمیٹی کے نائب چیئرمین نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ DG فارن افیئرز آفس شنگھائی مائنگ ہوئی بھی استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ہوائی اڈے پر پاکستان کے قونصل جنرل اور سفارت خانے کے حکام بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن یعنی AVIC کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا دورہ کیا۔ صدر مملکت مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ایئرکرافٹ کمپلیکس پہنچے اور وہاں موجود انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے جہاں J-10C طیارہ تیار کیا جاتا ہے۔ J-10C نے معرکہ حق میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ صدر مملکت کو J-10 J-F-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹرز پر بریفنگ کے علاوہ ڈرونز، خودکار یونٹس اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ J-10 اور J-F-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ مئی 2025 کے معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی نمایاں رہی۔ صدر آصف علی زرداری پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں جنہوں نے اس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین میں ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے چینگڈو سے میان یانگ کا سفر کیا۔ میان یانگ پہنچنے پر نائب میئر وہاؤ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت کو ٹرین کے آپریشن، سروس اور سیفٹی سسٹمز پر بریفنگ دی گئی۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک 45,000 کلومیٹر ٹریک موجود ہے جس کے ذریعے سالانہ 2 ارب سے زائد افراد سفر کرتے ہیں۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ چین کی ٹرینیں 350 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے چلتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور چینی سفیر یونگ زائیڈونگ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دوحہ میں ہونے والے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے قطر کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت، ثالثی اور سفارتکاری کی کوششوں پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے قطر کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان بطور غیر مستقل رکن سلامتی کونسل اس معاملے کو عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے OIC عرب ممالک کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل انسانی حقوق کونسل میں ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ رد عمل سامنے لایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، فلسطینی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم امہ کے مشترکہ اور مؤثر لاہ عمل کے لیے نہایت اہم موقع پر مفید ثابت ہوگا۔ پاکستان اور ایران نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملوں کو خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے قبل وزراء خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں فریقین نے مسلم امہ کو متحد کرنے میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے کلیدی کردار پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے آزادی اور حق خودارادیت کے منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کو دہرایا۔
दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने अपने मिस्री हममनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कतर पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा कि कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर हमले रियासती खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम उम्मा को इस नाजुक मौके पर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातू सीरी मोहम्मद हसन के दरमियान दोहा में अरब इस्लामी ममालिक सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। अरब इस्लामी सरबराह इजलास को इज्तिमाई कार्रवाई के लिए बरवक्त और ज़रूरी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन के दरमियान अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों की मजम्मत की और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। उन्होंने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने दोहा में हंगामी अरब इस्लामिक समिट वज़ीर ख़ारजा की तैयारी के इजलास के मौके पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कतर और खित्ते की दीगर रियासतों पर इसराइली हमलों की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार देते हुए मजम्मत की। उन्होंने फ़लस्तीनी कौस के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा में मुत्तहिद रद्द-ए-अमल की तश्कील और यकजहती को मजबूत बनाने में OIC और अरब लीग के अहम किरदार पर भी जोर दिया। और अब आपको अपडेट करेंगे कि दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 6,25,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है, जबकि घोटकी और सखर के कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर और गुड्डू बैराज का दौरा किया। तफसील जानते हैं शिराज अली डाहरी से। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 6,25,000 क्यूसेक से तजावज़ कर गई है। सखर और कोटड़ी बैराज के मकाम पर भी पानी में इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी से सखर, कोटकी, नौशरो फिरोज, जामशोरो, खैरपुर और सजावल के मजीद 60 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सिंध हुकूमत और इरिगेशन महकमे की जानिब से बंदों की निगरानी और हसास पुश्तों पर भारी मशीनरी से काम जारी है। जो बंद है लेफ्ट पे और राइट पे जो बंद हैं, वहाँ पे कुछ वनरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे काम भी किया हुआ है और काम चल भी रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे वहाँ जाके तो स्टोन डंपिंग, स्टोन पिचिंग और स्टोन स्टेकिंग मशीनरी एवरीथिंग इज देयर। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और इंतजामात का जायजा लेने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गुड्डू बैराज, कश्मोर और सखर बैराज पहुंचे, जहां पे महकमा इरिगेशन ने उन्हें सैलाबी सूरत हाल, बैराजों में पानी के बहाव और इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। इस वक्त भी हमारे बंद दरिया से 8 फीट ऊंचे हैं। हमारी पहली तरजीह कीमती जानों का बचाव और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। तो के बंद पे जो इंटरवेंशंस की हैं वो काम आई हैं और मुझे भी जाम खान शोरो साहब ने, हमारे सेक्रेटरी इरिगेशन ने यही बताया है कि वहाँ पे तसल्ली बख्श पोजीशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है किसी भी ऐसी सूरत हाल को फेस करने के लिए अगर ऐसी कोई अराइज होती है। तो एक बार फिर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे सिंध के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कच्चे के जो लोग थे, बड़ी रिजिलियंट कौम है हमारी सिंध के रहने वाले सब लोग। इतने बड़े आजमाइश का वो डट के मुकाबला कर रहे हैं और कोई पैनिक नहीं फैला रहे। उन्होंने कहा कि हमें आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में सैलाब से भारी नुकसान हुआ है। लाखों एकड़ एराजी पर काश्त की गई फसलें और घर तबाह हुए हैं। इससे पहले वजीर आला सिंध ने गुड्डू और सखर बैराज का दौरा किया, जबकि गुड्डू और सखर बैराज पर आइंदा 24 घंटे में सैलाबी पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोटड़ी बैराज, जामशोरो। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायराकार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील। टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। नैवटेक और प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए वजीर आजम का खुसूसी पैकेज। रेस्टोरेंट मैनेजर, फूड पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल कुक, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोग्राम मैनेजर और को पैमाही समेत 13 मुफ्त कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तरबियत, रोजगार और कारोबार के रोशन इम्कानात। ऑनलाइन दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। कोर्सेज की तफसील और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नैवटेक। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी रिपोर्ट में। बलाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला थमने और भारत की जानिब से पानी की आमद में कमी के नतीजे में दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में कमी आई है। दरियाओं से मुल्का सैलाब मुतासरा इलाकों से निकासी आप के साथ साथ इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। सैलाब की इतला देने वाले इदारे के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 3,95,000 क्यूसिक है, जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मराला, खानकी, कादराबाद, चनियोट और त्रीमू के मकाम पर दरियाए चनाब मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए रावी, जस्सड़, शादरा, बल्लोकी और सिदनाई के मकाम पर भी मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,04,000, हेड सलमान की पर 76,000 और हेड इस्लाम पर पानी की सतह 82,000 क्यूसिक है। सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया और उनसे इमदादी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर कानून सुहेब अहमद भरत भी एक हफ्ता से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद है। उन्होंने जलालपुर पीरवाला, लियाकत चौक और अलीपुर समेत दीगर इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को सेहत बख्श साफ पानी की फराहमी जारी है और अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से सैलाब ज़दगान को 17,33,000 लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन में राशन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तकसीम की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सैलाब ज़दा लोगों की मुकम्मल बहाली तक उनके साथ हैं और उनके नुकसानात का मुकम्मल इज़ाला किया जाएगा। हम एक बहादुर कौम हैं और मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस मुसीबत से भी निकलेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में वफाकी हुकूमत के वसाइल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हम उन्हें पूरी तरह वक्फ करेंगे ताकि अपने उन बहनों और भाइयों की खिदमत करें जिनका सैलाब से नुकसान हुआ है।
तहसील जलालपुर पीरवाला, अलीपुर, मुल्तान सदर और सिटी में रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें अब तक जलालपुर पीरवाला से 21,000 से ज्यादा अफराद और 3,364 जानवर, जबकि मुल्तान से 9,000 से ज्यादा अफराद और हजारों जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और चिनाब पुल पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। बस्ती जुगों वाला, अकबर बंद, सिकंदरी नाला और शेरशाह बंद तक पहुंचने वाले पानी में भी कमी आ रही है। दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन में 90 से जायद फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जबकि 5 लाख से जायद अफराद को सैलाबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 4.5 लाख से जायद जानवरों को रेस्क्यू और उनके चारे का बंदोबस्त का सिलसिला भी जारी है। कैंप्स में मुतासिरीन को 3 वक्त का खाना और बच्चों के लिए दूध फराहम किया जा रहा है। नाश्ते में जो है ना चने देते हैं, उसके साथ जो है ना अपना नान वगैरह होते हैं। उसके बाद जो है ना अब चाय का इंतज़ाम भी हो गया है। दोपहर में जो होता है ना वो कभी दाल आ जाती है, कभी चने के सालन, या कभी गोश्त चावल आ जाते हैं। हर शय मिलती पई है, रोटी खाना पीना हर शय मिलती पई। असां आए मौसम रोटी तू। महकमा सेहत की टीमें मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर डर्मेटाइटिस के साथ पेशेंट आते हैं, स्किन इश्यूज़ के साथ और गैस्ट्रो के साथ, एक्यूट गैस्ट्राइटिस वगैरह के साथ। इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, वाटर बोर्न जितनी भी डिजीज़ हैं उनके साथ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और उनके लिए हमारे पास सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। पोर्टेबल वाशरूम यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। आपके सामने यहाँ रोड के ऊपर पोर्टेबल वाशरूम इंस्टॉल किए हुए हैं और आगे एक लंगड़ियाल कैंप पे वहाँ पर भी इसी तरह से पोर्टेबल वाशरूम इंस्टॉल किए गए हैं और उनका ये है, उसके ऊपर पानी का भी इंतज़ाम है और उसको भी यही MWMC की टीम ही मतलब 24 घंटे देख रही है। जिले इंतजामिया मुल्तान के साथ साथ दीगर फलाई तंजीमों की जानिब से भी सैलाब मुतासिरीन में खाना और पानी भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि मुतासर इलाकों से लोगों और उनके मवेशियों का इंखला बदस्तूर जारी है। जिला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि नशेबी इलाकों में फंसे अफराद के इंखला के लिए भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मुतासरा किसानों और अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और रिलीफ के लिए हुकूमत ने क्लाइमेट एमरजेंसी और एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर की है। तफसील जानते हैं डॉक्टर उमर मलिक से। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि एमरजेंसी इक़दामात के तहत ज़रई पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर अमली इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि आबी गुज़रगाहों पर तामीरात न की जाएँ। कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रेंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। काबीना ने ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब के साथ मिल के और उनकी हिदायत पे 2 एमरजेंसीज़ डिक्लेयर कर दी हैं। एक तो क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, दूसरी एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई। उस एमरजेंसी के तहत हमें जो कुछ करना पड़ा वो इंशाल्लाह हम करेंगे पूरे मुल्क के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नुकसानात की तफसील जानने के लिए सर्वे जारी है और आलमी मालियाती इदारों के साथ मुशावरत भी कर रहे हैं। ताहम हुकूमत पहले अपने दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है ताकि मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जा सके। सड़कें मुतासर हुई हैं, ब्रिजेस मुतासर हुए हैं, लोगों के इमलाक, लोगों के मकान इसमें बह गए हैं और सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिहैबिलिटेशन का मकसद ये है कि जिनकी जानें बच गई हैं उनकी ज़िंदगियों को हमने वापस उस ट्रैजेक्टरी पे लाना है जो पहले जिस ट्रैजेक्टरी पे वो थे। Then is the entire reconstruction part, which is also going to be very important. इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ज़िला टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों में राशन तकसीम किया, बच्चों को खिलौने दिए और मकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नदीम अजीज़ सिंधु की जानिब से वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग भी दी गई। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब भरत और दीगर वज़रा ने अलीपुर में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। वहां जारी इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना किया। वज़रा ने कैंप में खाना, खुश्क राशन, टेंट, मेडिकल फैसिलिटी और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और उनसे कैंप में दी जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया।
پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری شنگھائی پہنچے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے۔ شنگھائی ایئرپورٹ پہنچنے پر شنگھائی کے فارن افیئرز آفس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل نے خاتون اول اور بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا۔ اس موقع پر شنگھائی میں پاکستان کے کونسل جنرل بھی موجود تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہر شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، اسی ویژن کے تحت FBR لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ اب پورا ہوگا مضبوط اور دستاویزی معیشت کا خواب، بڑھے گا اعتماد، بڑھے گا کاروبار، اب نہ ہوں گی غیر مصدقہ رسیدیں، نہ سپلائی چین میں ہیر پھیر، ہوگا شفاف کاروبار اور گوشوارے جمع کرانا اب نہایت آسان۔ اس سے پہلے تھا انوائسز کا روایتی طریقہ کار، تھا شفافیت کا محدود دائرہ کار، مگر اب ہے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا نیا دور۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے خوشخبری، ہر انوائس خودکار، شفاف، محفوظ اور دستاویزی رسائی کی حامل۔ اپنے انوائسنگ سسٹم کو پرال کے ساتھ منسلک کریں یا لائسنس یافتہ انوائسنگ سسٹم سے انٹیگریٹ کریں۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سے منسلک ہونے کے آسان اقدامات۔ اب آپ کے سسٹم سے بننے والی ہر انوائس فوراً ڈیجیٹل ہو جائے گی، منفرد نمبر اور QR کوڈ بھی بنائے گی۔ صرف ایک کلک پر ملے انوائسز، تاریخ اور مالیت کی تفصیل، ٹیکس فائلنگ کی بعد سہولت تکمیل۔ ڈیجیٹل انوائسنگ قوم کی سہولت، ملک کی دولت۔ مزید معلومات کے لیے FBR کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk یا ہیلپ لائن نمبر 051-111-772-772 پر رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان۔ ایک سوچ نے انگڑائی لی ہے، ایک اور کلی مسکائی ہے۔ میرے گھر میں سارے جہان کی خوشی سمٹ آئی ہے۔ بارش کی پہلی بوند کی مانند میرے دل سے ایک آواز آئی ہے کہ یہ ننھے قدم رکیں گے نہیں، یہ معصوم خواہشیں مٹیں گی نہیں، یہ قابلیتیں تھمیں گی نہیں، کیونکہ میں ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ۔ میری دونوں بیٹیاں میری کل کائنات اور میرا خاندان ہے مکمل۔ محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید اور بات کر لیتے ہیں بڑے میچ کی۔ T20 ایشیا کپ کے چھٹے میچ میں پاکستان نے بھارت کو 128 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ دبئی اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رن سکور کر لیے۔ سائم ایوب 0، محمد حارث 3، فخر زمان 17، سلمان علی آغا 3، حسن نواز 5 اور محمد نواز 0 پر آؤٹ ہوئے۔ صاحبزادہ فرحان کچھ دیر وکٹ پر ٹھہرے۔ انہوں نے 44 گیندوں پر 40 رنز بنائے، جس میں 3 چھکے اور 1 چوکا شامل تھا۔ فہیم اشرف نے 11 اور سفیان مقیم نے 10 رنز بنائے۔ شاہین شاہ افریدی نے 4 چھکوں کی مدد سے 33 رن سکور کیے اور وہ ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 3، اکشر پٹیل اور جسپریت بمراہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ Down the track, it's up in the air and taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. Gives him the charge. Does this carry?
Yes, it does. A long time awaiting, 33 deliveries since the boundary. Now this has gone straight up. Another opportunity, another wicket here in the offing. Yes, taken. The other. Straight, and it's a big appeal again. Finger goal. Full shot. He's found the gap. पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच देखने के लिए मुल्क भर में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं जहां शायकीन मैच देखने में मसरूफ़ हैं। शायकीन क्रिकेट PTV स्पोर्ट्स HD के जरिए एशिया कप के तमाम मुकाबलों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस एहलकारों ने जिला बारामूला के मुताबिक इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री एहलकारों और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिले के इलाकों गुलमर्ग और कुंडी सुल्तानपुरा में कंट्रोल लाइन के करीब 35 से ज्यादा देहात में तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय फोर्सेस एहलकारों से जिला डोडा में भी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान लोगों, खासतौर पर नौजवानों को सख्त हिरासत किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मुहासरे और तलाशी की बिलाजवाज कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें मकामी लोगों को दहशत ज़दा करने और अपने देहात छोड़े जाने पर मजबूर करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज ने इन देहात में कैंप कायम रखे हैं जिनमें हिंदुत्व अनासिर को तरबियत दी जा रही है। कंट्रोल लाइन के साथ वाले इलाकों में भारतीय फौज की यह कार्रवाइयां पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के खिलाफ मोदी हुकूमत के मजमूम मंसूबों का हिस्सा हैं। मकबूजा इलाके में फलों के काश्तकारों और ताजरों ने खबरदार किया है कि श्रीनगर जम्मू शाहरा की बार बार बंदी से फलों की सनत शदीद खतरे से दोचार है। उन्होंने कहा कि फलों से लदे ट्रक शाहरा पर फंसे रहने के बायस बड़ी मिकदार में फल खराब हुए, जिससे उनका भारी माली नुकसान हुआ है। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर के तहत पंजाब में हालिया सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान की तकसीम सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में शुरू कर दी गई है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने इस इमदादी कार्रवाई के लिए 10,000 शेल्टर, नॉन फूड आइटम किट्स और 10,000 फूड पैकेजेस मुख्तस किए हैं। हर शेल्टर किट में एक खैमा, सोलर पैनल, बमा LED लाइट्स, 2 थर्मल कंबल, प्लास्टिक की चटाइयां, पायदार किचन सेट, पानी का कूलर और एंटी बैक्टीरियल साबुन शामिल है। जबकि हर फूड पैकेज का वजन 95 किलोग्राम है, जिसमें आटा, चीनी, दालें और खाना पकाने का तेल शामिल है ताकि मुतासरा खानदानों की फौरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा सकें। सियालकोट में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शेड ट्रस्ट की जानिब से बजवात में मेडिकल कैंप लगाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अवैस खटाना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जहां हुकूमती इदारे रिलीफ और बहाली के कामों में पेश हैं, वहीं निजी इदारे भी मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर और शेड ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की तरफ से सियालकोट में बजवात के इलाके में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मुतासरीन इलाका का जिल्दी अमराज, आंखों की तकलीफ, पेट की बीमारियों, हड्डियों के मसाइल के साथ दिल और गुर्दों के अमराज का भी मुआयना किया गया। मेडिकल कैंप में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद का चेकअप किया गया और इन्हें फ्री अद्वियात फराहम की गईं। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों के साथ साबका वफाकी वजीर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान मौजूद रहीं। ये यंग डॉक्टर्स और इनकी तंजीमें किसी सियासी जमात, किसी हुकूमती इदारे या किसी किस्म की ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं कर रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक और नादार लोगों की दारसी के लिए निकले हैं। मेडिकल कैंप में तिबी मुआयना के लिए आने वाले अफराद और इलाका मकीनों में खाना भी तकसीम किया गया। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश गाह गए और उनके वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात की और शहीद कैप्टन तैमूर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कैप्टन तैमूर के अहले खाना के हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपके हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा कि मेरा बेटा अल्लाह ताला की अमानत था, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर हसन मोहम्मद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अबाइला के माशूगगर पेशावर में अदा की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह।
پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر نیوز پروڈیوسر محمد حسن خان المعروف حسن مومند کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسن مومند نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پی ٹی وی سے وابستہ رہتے ہوئے صحافت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ مرحوم نہ صرف عوامی مسائل کو رپورٹ کرنے کے حوالے سے معروف تھے بلکہ خیبر پختونخوا کی ثقافت، تاریخ اور سماجی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ مرحوم کے انتقال پر صحافتی، ادبی اور سماجی حلقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وفاقی سیکریٹری اطلاعات و ایم ڈی پی ٹی وی انبرین جان اور ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور سمیت پی ٹی وی کے عہدیداروں اور عملے نے حسن مومند کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی حسن مومند کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پی ٹی وی ہوم لاہور مرکز کی پروڈیوسر سدرا طارق انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 36 سال تھی۔ وہ گزشتہ چند ماہ سے علیل تھیں۔ سدرا طارق کا شمار قابل اور محنتی پروگرام پروڈیوسرز میں ہوتا تھا۔ وہ مارننگ ایٹ ہوم شو کی پروڈیوسر تھی۔ انہوں نے سوگواران میں 3 کم سن بچے چھوڑے ہیں۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات اور پی ٹی وی کی مینیجنگ ڈائریکٹر امرین جان نے پروڈیوسر سدرا طارق کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل اور مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ دشمن ایک ایک کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امت مسلمہ میں اتحاد ناگزیر ہے۔ لاہور میں پیغام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ تم میری سرزمین پر روز دہشت گرد بھیجتے ہو، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کس طرح اس خطے میں رہنا ہے۔ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم افغانستان کو آپ کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں، لیکن بھائی سے بھی تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی میرے بچے کے خون کو اپنا خون سمجھے۔ آپ کے ملک میں جو بیٹھے ہندوستان کے اور اسرائیل کے پروردہ دہشت گرد ہیں، جو کبھی بلوچستان میں اور کبھی خیبر پختونخوا میں قتل عام آگے کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ روکیے، اور اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے پھر ہمیں اجازت دے دیں، پھر ہم ان کا علاج خود کر لیں۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ چند روز کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو نوکنڈی اور دالبندین میں 42، بکھر اور چلاس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔